Hello everyone, very good afternoon, very warm welcome once again to the session brought to you by PW. This lecture is continuation of our unit software engineering which we have started yesterday, and we have seen the introduction along with the stages of software development life cycle. So in today's class we're going to talk again about software development life cycle, and yes, very important, the various types of models in software development life cycle along with its features. Hearty welcome to all of you, but before we continue our session, please confirm my voice is audible and the screen is clearly visible. One confirmation is needed so that I can proceed with the session smoothly. Welcome everyone. Settle please. So we are going to discuss the highlighted keywords in today's class. So please take your paper and pen out as well so that you can document all of them, and you can definitely expect questions related to these models. Yes, okay, all clear here. Chaliye. So no one is facing any issue. Very nice. Voice low, please increase at your end because it's perfectly fine here. I'm using mic as well. Yes. To raise voice, I think you have to check at your end because it's showing perfect here at my end. Chaliye. So let's start with the discussion, everyone. What was last lecture about? So last lecture was about the introduction. Yes, it was the introduction of software engineering. So we have seen only the basic. What is software engineering? Why do we have it? Hana? What is the software process? What are the framework activities? How do we define umbrella activities? Right, so all that discussion we did in the past lecture. So in today's class we are going to continue our discussion, and we are talking more about the software development life cycle and the various models. This is a very important topic to be asked in competitive level examination. Star mark important. Yes everyone, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है. आप पेपर्स उठा के देखिए. डज नॉट मैटर फॉर वट एवर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग, whether you are preparing for central or for state level examinations, everywhere you will find questions related to the various types of models, because definitely that creates confusion, है ना. जब हम बहुत सारे पढ़ते हैं ना तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कौन सा फीचर है ना. तो इसी वजह से इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड सबसे पहले Priyanka, for any query related to DPP, you can raise your query here in the doubt portal, है ना. यहाँ पे जहाँ से आपने join करा है, so here we have a doubt portal also, so you can place the doubt there related to DPP. We will answer it. Okay, right. चलिए. So first of all, let's again talk about what is software development life cycle. Although I have defined it yesterday, but again, let's quickly recall what we studied yesterday. So software development life cycle is basically the process कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है. दैट इज अ लाइफ साइकिल. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक जनरली अबाउट अ लाइफ साइकिल, अ ह्यूमन्स लाइफ साइकिल, है ना. तो सबसे पहले छोटा सा न्यू बॉर्न बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इन्फेंट बनता है ना, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है टॉडलर, देन उसके बाद वो स्कूल में जाने लग जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, स्कूल पास कर जाता है, कॉलेज में चला जाता है, फिर वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, फिर वो एक मैरिड मैन बन जाता है, अडल्ट मैन हो जाता है ना. ऐसे करते करते द स्टेजेस ऑफ लाइफ, देन he will reach to the old stage and finally he will like I mean his life will be over, है ना. सो ये एक लाइफ साइकिल है ह्यूमन की, कि छोटे से लेकर बड़े तक होने तक. हाँ, सिमिलरली जब एक सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं तो वो छोटे लेवल से लेके बड़े तक कैसे पहुंचेगा. हाउ डू यू बिगिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड रीच टू द फाइनल स्टेज वेयर द सॉफ्टवेयर इज रेडी टू बी यूज्ड बाय एवरीवन, है ना. सो वहां तक हम कैसे पहुंचते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी in the process of software development life cycle. So this is basically the purpose where industry is basically using the software for developing, है ना. So software को बनाने के लिए ये steps को follow करते हैं जिसको हम life cycle बोलते हैं. So this is basically the aim is to produce a high quality software which can definitely meet
or exceeds the customer's expectation. And very very important, the software project should be completed on time and within the budget, है ना. So ये भी बहुत important है कि completion होनी चाहिए time में, और cost estimation एक बहुत essential parameter है. SDLC को हम क्या बोलते हैं? We call it as सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जैसे मैंने सबसे हेडिंग में ही प्लेस करा है, ठीक है. एंड दिस इज अ फ्रेमवर्क विच बेसिकली टॉक द tasks which are performed on each step. That's what I said. You can say it's basically the process. You can also say it is a procedure. Yes, how do you develop software? It's a procedure. खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का एक प्रोसीजर है ना, एक रेसिपी है ना, वैसे ही सॉफ्टवेयर को बनाने की भी एक रेसिपी है, एक प्रोसीजर है. उसको बोलते हैं, उसका लाइफ साइकिल, जिसमें वो पूरी स्टेजेस से पास करके एक फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जिसको हम खा सकते हैं. समझे? तो दैट इज बेसिकली the procedure. It's a process. It is basically the steps, or you can say the way, or you can also call it as the recipe. So what we are performing at every step, that is basically the life cycle process. Okay. All right. Next question, next is the diagram which I've discussed in the last lecture. सबसे पहले हम start करते हैं planning phase से. सेकेंड हम लोग करेंगे डिफाइनिंग पार्ट पे, देन उसके बाद डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट विच इज रिलीजिंग इन द मार्केट, फॉलोड बाय द मेंटेनेंस पार्ट. राइट, सो ये पूरा प्रोसेस है. दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन विच इज फॉलोड, right? And as I've discussed yesterday, there was one simple theory question which was asked this time in the re-net examination जो 23rd August को हुआ था. उसमें इसकी stages sequence पूछी थी. So very simple है, you have to learn the sequence. Yes, you have to learn the sequence. ठीक, sequence आपको learn करनी है, and उस sequence के ऊपर आपको simple straight question पूछा जा सकता है. Priyanka, that too you can ask, no problem, right? आप उसको भी send कर दो तो वो हम reply कर देंगे. Okay, चलिए. So yes, बिल्कुल, yes Arindam, planning basically comes under where you are preparing the software or thinking कि is it feasible practically to develop a software product or not, है ना. And when you define a software, you're basically creating the requirements, you're documenting it practically. जितनी भी requirements हैं gathered from definitely the various sources, from the customers, from the questionnaires, from the surveys, from the team of experts, है ना. So that all includes the defining part. Okay, चलिए. सो ये वाला जो बेसिक इनका डेफिनेशन था, दिस वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर. सो इफ एनीवन हैज मिस्ड दैट पार्ट, डू वॉच द रिकॉर्डिंग, बिकॉज नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडल्स. मैं आज बात करूंगी मॉडल्स की. मैं ये डायग्राम मैंने सिर्फ इसलिए ऐड करा है ताकि आप कोरिलेट कर पाओ कि हम लोग जो है क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कल का सेशन स्टॉप किया था, मैं यहीं से आज कंटिन्यू कर रही हूँ. पर ये जो स्टेजेस है बेटा, ये आप लोग जरूर एक बारी चेक कर लेना अपने एंड पे पिछले लेक्चर में, बिकॉज वहां पर हम लोग इसे डिटेलिंग में पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो यू हैव टू लर्न द सीक्वेंस. आई क्लियरली मेंशन वी डिड वन क्वेश्चन आल्सो व्हिच वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट 2024 अगस्त पेपर. ठीक, चलिए. Now let's begin with the first and the very simple basic type of model which is called as software development life cycle models. The first model called as waterfall model. This is also called as previous year question. ये question है, जहां जहां पे question लिखूंगी ना वो खुद समझ जाना कि ये क्वेश्चन पूछा है. वाटरफॉल मॉडल का दूसरा नाम क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर मॉडल. It is also called as sequential model. Yes, it is also called as sequential model. It is also called as classic life cycle model. Yes, this is also called as classic life cycle मॉडल. सो ये अलग अलग नाम से पहचाना जाता है. व्हाट इज बेसिकली वाटरफॉल? वाटरफॉल देखा है कभी? झरना,
पानी का झरना देखा है कभी? सो हाउ इट बेसिकली कम्स कि ऊपर से पानी नीचे बह रहा है। कभी आपने देखा है कि पानी उल्टा जा रहा है विदाउट एनी प्रेशर और विदाउट एनी आई मीन यूजिंग एनी मोटर और एनी प्रेशर डिवाइस? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द वाटर कम्स डाउन, जमीन पे गिरेगा आके पानी, है ना। तो ऐसे ही जैसे वाटरफॉल का पानी नीचे 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 आएगा, वैसे ही waterfall model में भी the software process is going downward, passing through each stage, reaching to the final step, right? That's what is going to happen in case of waterfall. This is basically development of each stage. अब टेक्निकल वर्ड पढ़ते हैं, which means that a development phase cannot begin until the previous phase complete. So very simple, जब तक आपके पास पिछली फेज कंप्लीट नहीं होगी, जैसे पानी है तो पानी बह के जब तक यहां पहुंचेगा, यहां पे पहुंचने के बाद ही वो यहां से आगे जाएगा। सिंपल, यहां से डायरेक्ट यहां पे नहीं आ सकता पानी, है ना, बिकॉज इट हैज टू रीच टू द स्टेप। सो अब एक स्टेप कंप्लीट होगा तो वो नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट कंप्लीट होगा तो वो आगे नेक्स्ट पे जाएगा। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, है ना। ऑल्सो देर इज नो प्रोविजन कि पानी यहां से वापस चला जाए। नो, देर इज नो बैक ट्रैकिंग, देर इज नो प्रोविजन दैट वी आर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द प्रीवियस स्टेज। दैट्स नॉट एग्जिस्टिंग एंड दैट्स व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक विच वी हैव इन वाटरफॉल मॉडल, कि जब मेरा पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसके बाद मुझे पता लगता है कि क्या भाई सही बना भी है कि नहीं, राइट। बिकॉज बीच में हमारे पास फीडबैक का कोई भी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, एंड दैट्स व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन केस ऑफ the waterfall model. I've written here, so which means that the development phase cannot begin until the previous stage is completed. So we cannot overlap the phases. हम overlap नहीं कर सकते. Also in waterfall, the output of one phase serve as the input to other. इस phase का जो output निकलेगा ये दूसरे के लिए input है ना। Similarly इसका जो output निकलेगा वो next के लिए input है. So this process basically goes on, and you can see the diagram of the waterfall model. That means after completing requirements will go to design. After completing design will go to implementation. Parallelly नहीं चल सकता. There is no parallel work which can be done. I've clearly mentioned here that we cannot overlap the phases. That means you can say that there is no parallel work. Parallel work नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही समय पे आप रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रहे हो, साथ साथ आप डिजाइन भी बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। या फिर आप डिजाइन बना रहे हो, साथ साथ आप इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हो कि मैं इस डिजाइन को कौन सी लैंग्वेज पे लगाऊं, है ना। दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर मूविंग इन द वे दैट द आउटपुट ऑफ वन स्टेप विल वर्क एज इनपुट फॉर द another one, and that's what is the major drawback. Once you reach to the final stage, then only I can see the finished product, है ना। finished product मुझे यहाँ मिलेगा, इससे पहले मैं फिनिश प्रोडक्ट को नहीं देख सकती हूँ। इस वजह से दिस मॉडल इज रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस। सोचो, जब आप यहां तक पहुंच गए तब आपको पता लगा कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर तो ठीक ही नहीं बना, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को दोबारा से बनाना पड़ेगा ना। तो दोबारा से बनाने के लिए जितनी लेबर लगी, जितनी कॉस्टिंग लगी, जितना टाइम गया, right? That is why waterfall model is rarely used in practice. I've added these points. Let's see. So once one phase of development is completed, then we move to the next phase, but we cannot go back to the previous state. And as what I said you here, that finished product, yes, finished product will be available for review at the end. Yes, at the end of all stages. ठीक है, सारे स्टेजेस के खत्म होने पे हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा रिव्यू के लिए। उससे पहले आप रिव्यू नहीं कर सकते हो इन बिटवीन, एंड दैट्स व्हाट इज द मेजर disadvantage of waterfall model, and therefore this model is rarely used in practice. ठीक है, ये रेयरली यूज्ड होता है प्रैक्टिस के अंदर, यही इसका मेन कारण है।
ना यूज करने का। बिल्कुल आप बोल सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो, देयर इज नो फीडबैक। You can definitely call it like this, there is no feedback. So keywords are important here. मैं लास्ट में ना जब ये सारे बता दूंगी ना, जब मैं ये सारे बता दूंगी तो उसके बाद मैं आपको ना एक समरी बताऊंगी, ठीक है? वो समरी आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। Yes. So in waterfall model, we have first very important part, that waterfall model does not have the feedback. And but that's what we have. Therefore, we have one more model which was introduced, and that is the iterative model. Because this drawback which we have now, that we do not have a feedback existing, that feedback feature is added in iterative model, जो मैं अब बताऊंगी. Yes, there is no feedback. That means no backtracking. Definitely, you can say it's a rigid model. बिल्कुल बोल सकते हैं कि हम ये rigid model है. यहाँ पे कुछ भी चेंज आप जो है चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? सब डिसएडवांटेजेस के अंदर है, रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस. यू कैन ऑल्सो कॉल दिस मॉडल एज द रिजिड मॉडल. यू कैन कॉल इट एज इनफ्लेक्सिबल. बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल मॉडल नहीं है, आप बीच में कुछ भी चेंज कर ही नहीं सकते हो. इफ यू विश टू देन ऑल्सो यू कैन नॉट, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिवील द फाइनल प्रोडक्ट एट द एंड. सो एट द एंड यू विल गेट टू नो वेदर इट्स ओके और नॉट, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन बिटवीन, ठीक है? सो it's definitely the rigid model, it's inflexible model, है ना? Also I said you one more thing, इसमें parallel work नहीं होता, है ना? So there is no parallelism, no changes can be done. So ये सब इसके drawbacks हैं. सिर्फ एक ही यहाँ पर जो एडवांटेज होती है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल मॉडल है. दैट्स द ओनली पॉइंट विच यू कैन पुट इन the waterfall model, ki this is the simple. So simplicity is one of a prime advantage. Otherwise you have mostly all of the points as disadvantages for waterfall model, ठीक है? Parallelism नहीं होता, it's rarely used in practice. You can also say this is not for real life projects, है ना? प्रैक्टिकली यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इतनी कॉस्टिंग के बाद आप जो है एंड में जाकर सो फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, है ना? तो दिस इज नॉट फॉर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स. असली में जो हम यूज करते हैं इनके लिए नहीं है, सिर्फ बातें करने के लिए, राइट? ओके, चलिए. No changes, nothing can be done. Also, one more disadvantage here, that there is no user interaction involved in case of waterfall model. So I can also say that there is no user interaction which is involved in the case of waterfall model. Chaliye, now let's proceed to the next part. And let's talk about the other phases, other models which are existing. So since we have seen the major drawback existing for the waterfall model is there is no feedback. Agar feedback hoga, socho, agar feedback hoga, then we do have parallelism. We can call this model is not rigid. We will obviously say this is a flexible model, because obviously with feedback it is going to include some changes, है ना, which we are not existing, which generally are not existing here, because there is no change. All right, but if we have feedback existing, then all these points might become at the positive side, है ना? Therefore we have one more model which is existing with slight modification, and that is called as the iterative waterfall model. The other name of this is iterative waterfall model. इसका असली नाम ये होता है iterative waterfall model. Let me write here, iterative waterfall model. So what is in this? This is just a slight modification to the waterfall model with feedback. मैं लिख देती हूँ, इसका short keyword ये है कि this is actually the waterfall model plus the feedback. So we are providing the feedback to the previous stage. अगली stage पे जब आप पहुंच गए तो आप पिछले से को फीडबैक दे सकते हो, है ना? तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लेट अस कंसिडर दैट आई एम इन अ कोडिंग फेज, ठीक है?
in the coding phase I found some problem, right? So I can give the feedback to the previous stage, that is design. Yes, previous stage was design, so I'm going to give a feedback to the design phase that there was some issue in the design, therefore we found a problem in coding, है ना? So ये feedback provide कर सकता है so as to make changes to the design phase so that the design can be modified so as to remove that defect. समझे? रिपीट करती हूँ, मैंने कहा जब हम कोड बना रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो मुझे कुछ प्रॉब्लम मिली, है ना? अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम मिली तो मैंने क्या करा, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने पिछली फेज जो थी, जो कि डिजाइन फेज थी, उसको फीडबैक दिया कि डिजाइन में चेंज करो ताकि मेरा ये जो डाउट है कोडिंग फेज के अंदर रिजॉल्व हो सके, राइट? सो वी हैव अ फीचर विच इज कॉल्ड एज द फीडबैक. यस, फीडबैक का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है यहां पर एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे पैरेललिज्म नहीं होता, राइट? ऑल्सो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं इनको हम पहले फ्रीज कर देते हैं, रिक्वायरमेंट्स में चेंज नहीं हो सकता. देयर इज नो चेंज इन रिक्वायरमेंट, दैट यू हैव टू सी. There is no change in requirements. I cannot change requirements. I'm just making changes to the design part. ये नहीं कि मैं कोड में पहुंच गई, मुझे पता लगा कि ओहो मैं तो ये ऐड करना भूल ही गई, एग्जाम्पल, तो मैं वो नहीं कर सकती बिकॉज रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं हो सकती. रिक्वायरमेंट्स फ्रीज हो जाती है इनिशियली ही. रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप चेंज नहीं कर सकती. यू कैन नॉट मेक चेंजेस टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. याद है, वी हैव डिस्कस्ड दिस वर्ड yesterday that all the requirements are basically documented in a type of document which is called as SRS. So I cannot make changes to requirements. All right, I'm just providing feedback to resolve the queries. Also, there is no parallelism. Parallel work नहीं हो रहा है, हो तो step by step ही रहा है, but it's just that we have an additional feature of feedback. So this is applicable for small projects. So this can be applied to small projects. छोटे projects जितने भी होते हैं उनको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग इन्हें आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स की. Yes, please. So in a sense, because I'm saying here that the requirements cannot be changed, so I can call it as rigid in terms of requirements, है ना? So because requirements cannot be changed, so I can call this as rigid in terms of requirements. Also, one thing which is common in this and waterfall, I have no intermediate delivery. मैं बीच बीच में चीजें नहीं दे सकती हूँ, समझ रहे हो? जब प्रोडक्ट बन जाएगा पूरा तभी डिलीवर होगा. So this is also one important point, that there is no intermediate delivery कि बीच में आधा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता, समझ रहे हो? So यहाँ पर भी हाँ बेसिक मॉडल है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है बिल्कुल. पैरेललिज्म is same as overlapping. Parallelism means that more than one phases are worked at same time. That means at the same time you're working on design, at the same time you're working on coding. That cannot be possible. Yeah, we are providing feedback, but that does not mean that coding and designs are working at same time. When you provide feedback, they will make changes to design part, then again coding will start. दोनों साथ में नहीं चलेंगी, समझे? So there is no parallelism. Okay. Am I clear, everyone? So this is iterative model. So it is also a basic model. So every time feedback is given to previous stage. ठीक है? Feedback is an essential feature which we have added here. So feedback is provided to the previous stage. आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको. That one essential point to remember about this is feedback provided to previous stage. पिछली स्टेज को हमने फीडबैक दिया है. ये एसेंशियल पॉइंट था जो कि किसी वाटरफॉल जनरल मॉडल जो हमने पढ़ा है उसमें नहीं है. हाँ जी, यस, नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन. बच्चे, आई एम ट्राइंग टू गिव यू वेरी बेसिक पॉइंट्स जिसमें आप ना याद रख सको, बिकॉज अदरवाइज अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे ना तो आप यकीन करो मुझे, आपको इनमें डिफरेंस जो है समझ आ ही नहीं सकता.
मैं बहुत शॉर्ट कर रही हूँ, इस वजह से रिलेशंस बनाती जाऊंगी सबके बीच में कि कौन किससे कैसे कनेक्ट हो रहा है। ओके पहले वाटरफॉल आता है, उसके बाद आइटरेटिव वाटरफॉल मैंने इसलिए बताया बिकॉज वो वाटरफॉल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ऑल राइट, yes, so this is with some requirements we develop न्यू वर्जन्स ऐड करेंगे, उसके अंदर हम कुछ फीडबैक वाले पॉइंट जो हैं एडिशन करके देन नेक्स्ट मॉडल के ऊपर मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली इज द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, जो मैंने पीछे ही ऐड किया हुआ है नोट्स के अंदर। लेट मी शो यू, वन सेकेंड। अच्छा, वन मोर थिंग, इन iterations you can see that in iterations you are producing like one product। जब आपके पास बन गया देन उसके बाद आप नेक्स्ट आइटरेशन में कुछ चेंजेस कर सकते हो, है ना। अच्छा, आइटरेशन में एक पॉइंट और है, एक तो हमने फीडबैक वाला पॉइंट दे दिया, ठीक है। फीडबैक आपने पिछली स्टेज को प्रोवाइड करा, यू गॉट समथिंग एज अ फाइनल प्रोडक्ट विच इज फॉर रिव्यू, ठीक है। नाउ यू वांट टू मेक चेंजेस टू योर रिक्वायरमेंट। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट में कोई नई चीज ऐड करना चाहते हो, तो अब आप सेकेंड आइटरेशन में वो करोगे। फर्स्ट आइटरेशन में रिक्वायरमेंट्स फ्रीज हैं, समझे। इसके अंदर आप रिक्वायरमेंट में चेंज नहीं कर सकते अनलेस द फाइनल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, देन इन सेकंड वर्जन, जिसे आप वर्जन भी बोलते हो, सेकंड वर्जन में आप अपने कुछ चेंजेस को दे सकते हो। दैट्स व्हाई इन द नोट्स आल्सो आई हैव एडेड वेरी क्लियरली that yes, you are going to develop the new version of the software based on the requirements which you found later। बाद में आपको लगा कि अच्छा मुझे तो कुछ और भी चाहिए था, तो वो पहली आइटरेशन में नहीं बनेगा। पहली आइटरेशन में तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी फिक्स थी, रिजिड थी, उनको यूज करके बनेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आप कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो यू हैव वर्ड हियर, दिस इज you can produce a software in various iterations, and iterations basically are developing like the first version of the software, right? Then later you realize कि आपको कुछ और requirements चाहिए थी, तो आप उसका second version निकालोगे, but उसके अंदर आप कुछ change नहीं करोगे, वो fix रहेगा, समझे। Arindam, yes, definitely we have less customer interactions. We cannot say huge customer interaction. We do have communication. That's why we have sometimes the feedback process, ना। इंटरैक्शन तो है, जैसे वाटरफॉल में तो जीरो इंटरैक्शन था, है ना। यहाँ पे इंटरैक्शन है, तभी तो हमें पता लगा कि हमें नेक्स्ट आइटरेशन निकालनी है, इसमें ये चेंज करना था, समझे। तो वो आया ही तब जब इंटरैक्शन है, बट वी डू नॉट हैव ह्यूज इंटरैक्शंस, डेफिनेटली लेसर। Okay, so after first version is released, then there is the need to change the software, then new version is developed। मेरा पॉइंट समझ गए। मैंने ये जो आपको पॉइंट्स बताए हैं कि आप रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, आप पैरेललिज्म पे वर्क करोगे, आप पैरेललिज्म पे वर्क नहीं करोगे, है ना। आप फीडबैक दे सकते हो। ये मैं बात कर रही हूं सिर्फ एक आइटरेशन की। ये एक आइटरेशन का मतलब है दिस इज वर्जन नंबर 1। अब वर्जन 1 आ गया, उसमें मुझे पता लग गया, मेरे पास फीडबैक आ गया, मेरे पास फाइनल रिव्यू आ गया, मुझे पता लगा कि अरे मुझे तो रिक्वायरमेंट्स में कुछ और ऐड करना था, तो मैं इसमें चेंज ना करके इसका सेकंड आइटरेशन निकालूंगी विच इज कॉल्ड एज वर्जन नंबर 2। एम आई क्लियर एवरीवन? सिमिलरली वी गो टू वर्जन नंबर 3। सो हम वर्जन्स को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे we are going to produce the various versions with slight modification। So basic agenda is we are developing through repeated cycles। हम बार बार उसको repeat करते जा रहे हैं। So this model was basically developed to overcome the drawbacks of classic life cycle model। Am I clear? क्लियर है, ठीक है सब लोगों को। सिंपल है, देखो वर्ड्स, कीवर्ड्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने पहले ही बोला कीवर्ड्स के ऊपर ही सारे स्टोरी डिपेंडेंट करती है इन मॉडल्स की, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे एंड कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे वी शेप मॉडल विच इज वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल। ओके, सो हियर इट इज, यहां से ये स्टार्ट हो रहा था। वी शेप मॉडल, वी शेप मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज
verification validation model. I would love to see the responses here. What do you understand with the difference of verification validation? आपको क्या लगता है कि इन दो टर्म्स में क्या फर्क होता है? मुझे चैट में रिप्लाई करो, मैं आपका जो रिव्यू है, आपका जो ओपिनियन है इसमें देखना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, बिकॉज इज अ वेरी वेरी पॉपुलर वर्ड, and if you do not understand, then you will face trouble in complete unit of software engineering. चलो बताओ. खुशबू, मैंने उसको क्लियर किया है, आपने आई थिंक पूरा नहीं सुना. रिक्वायरमेंट्स में चेंज नहीं होता एक आइटरेशन में. जब आपका एक आइटरेशन कंप्लीट हो गया, एक वर्जन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि भाई मुझे तो इसमें कुछ चेंज चाहिए था, है ना, तो आप उसमें चेंज नहीं करोगे, आप उसका वर्जन निकालोगे दूसरा. इसी वजह से सेकेंड आइटरेशन लिखी है मैंने. यस. Validation means what? Verification means what? चलिए, let me explain. Well tried. I can see the response here. Verification validation को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है, लेट मी टेक वन ब्लैंक स्लाइड टू एक्सप्लेन यू हियर व्हाट इज द डिफरेंस. So one very very simple point, I think the technical, I mean almost all books have written this term verification validation में. एक तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है डिफरेंस का, वो क्या होता है ना. फर्स्ट इज यू हैव सीन दैट आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, है ना. सबने पढ़ा होगा, जितनी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स हैं उन सब के अंदर ये प्राइम डेफिनेशन तो वेरिफिकेशन में लिखी ही है. आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, राइट. And also, what is validation? Validation is just opposite to this, that have we built right thing? Have we built right product? है ना, और right thing कुछ भी. ठीक है, so ये दोनों में difference है. That means what is verification? Verification is basically when you are doing in process. दिस इज डन जब आप उस चीज को कर रहे होते हो, राइट. सो वेरिफिकेशन इज बेसिकली डन इन प्रोसेस, जब वो चल रही होती है ना. जब कोई चीज चल रही होती है तब हम करते हैं वेरिफिकेशन. एंड जब वो कंप्लीट हो गया, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू डू वैलिडेशन, विच इज बेसिकली डन बिफोर रिलीजिंग इट टू मार्केट, राइट. सो दिस इज डन बिफोर फाइनल रिलीज. फाइनली जब हमें प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज करना है, उससे पहले हम लोग करते हैं वैलिडेशन. आई गिव यू अ वेरी रियल लाइफ एग्जांपल विच यू ऑल कैन कोरिलेट. एग्जांपल लेते हैं. लेट अस कंसिडर वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चर ऑफ अ कार, राइट. कार मैन्युफैक्चर. तो जब अब कार मैन्युफैक्चर होती है, देन वी आर डूइंग वेरिफिकेशन एट एवरी स्टेप. हाउ? वी आर बेसिकली चेकिंग द इंजन, राइट. वी आर चेकिंग द टायर्स, ठीक है. वर्किंग ऑन इंटीरियर, ऑल राइट. ठीक. इसके अलावा ऑल द कंपोनेंट्स,
सो हर कंपोनेंट को आप इंडिविजुअली जब वो बन रहा है तब चेक कर रहे हो कि क्या मैं सही इंजन बनाया, क्या हमने टायर्स ठीक लगाए, क्या हमने इंटीरियर अप्रोप्रिएट करा, क्या हमारे सारे कंपोनेंट्स फंक्शनल हैं। सो ये जब आप चेकिंग कर रहे हो, ये चेकिंग वेरिफिकेशन का पार्ट है। अब गाड़ी बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, अब हमें सिर्फ उसको डिस्प्ले करना है दैट न्यू Honda City is coming, let's say. So now, to before releasing this into the market, there is one final review which is done. That is called as validation. कि मतलब हमने ये चेक करना है कि मेन जो चीजें हमने सोची थी कि okay, let's say Honda is producing a new version of Honda City. So now, what feature it is adding? Like say it is adding a panoramic sunroof into it, or it's providing the extra आई मीन क्या बोलते हैं उसको, रिम कार्स और एनीथिंग, सब जो भी इंटीरियर में वो चेंज कर रहे हैं, ऑल द थिंग्स अलॉयज लग के आ रहे हैं कंपनी से. सो दीज आर हाईलाइट्स विच आर बेसिकली checked at the validation phase, right? So ये validation के अंदर this is done before final release to customer. Yes, before final release to customer. कस्टमर के पास फाइनली छोड़ने से पहले होती है वैलिडेशन का प्रोसेस. जैसे मैंने अभी बोला, मार्केट में लॉन्च करने से पहले. तो दिस इज बेसिकली वी आर चेकिंग अगेंस्ट द एसआरएस, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. दिस इज द चेकिंग अगेंस्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि हमारे पास होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है ना. सो ये डिफरेंस है. आने को प्राइम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, और आपको यहाँ पे रटने की कुछ जरूरत नहीं है. अगर आप इन्हें समझ गए तो आप प्रैक्टिकली कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यू कैन अप्लाई. वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस. जैसे आप एग्जांपल हो, आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में आपसे डीपीपीस के क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको टेस्ट ले रहे हैं. ये क्या है? ये इन प्रोसेस है ना, आपकी तैयारी का प्रोसेस है. तो ये वेरिफिकेशन है. जब आपका फाइनल पेपर हुआ, वो फाइनल पेपर क्या है? दैट इज वैलिडेशन, कि आपने असली में कितनी पढ़ाई करी थी. दैट इज द वैलिडेशन, है ना. सो ये है डिफरेंस. आप ऐसे समझोगे टेक्निकली तो आप कभी भूल नहीं पाओगे, रटना नहीं पड़ेगा इन चीजों को, समझे? तो ये क्या हो रहा है? अनदर एग्जांपल आई हैव सेड यू, प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, right? Preparing for UGC NET examination, and the example which I can put here is the final paper जो आपके सामने आएगा. That is basically the evaluation of did you actually studied. All right, am I clear everyone? Yes, सबके डाउट्स क्लियर? जिसको जिसको कहीं पे कुछ डाउट था वो क्लियर हो गया. अच्छा, एक चीज और, ये हमेशा डेवलपर करेगा, right? Because developer, the person who has developed the engine, he will check engine, right? The person who has an idea of interior, who is in this field of car interior, who that is going to check interior ना, obviously, right? So ये तो by default हो गया ना, that this is done by developer, right? ये developer करता है हमेशा verification, right? Whereas when you talk about validation, when it has to check against SRS, so checking portion is basically done by the expert, which is called as tester. ठीक है, जिसको तजुर्बा है सिर्फ वही इसको चेक करेगा, दूसरा बंदा इसकी चेकिंग नहीं कर सकता. क्लियर? कंफर्मेशन नीडेड एवरीवन. सो यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया वैलिडेशन वेरिफिकेशन का. वेरिफिकेशन हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मतलब हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट की आप लोग टेस्टिंग कर रहे हो, है ना. सो ये एक मॉडल है जहां पर आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेकिंग, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज की चेकिंग होती है. किसके अंदर? इन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन. whereas when you talk about the validation, जब आपका पूरा सिस्टम बन जाता है उसकी आप चेकिंग करते हो. सो वैलिडेशन इज बेसिकली चेकिंग द कंप्लीट सिस्टम, पूरे सिस्टम की चेकिंग करना. दैट इज कॉल्ड एज वैलिडेशन. ओके, this is what is a difference between
verification, validation. An important point is कि because we are basically, this is a V-shaped model, this is also extension of waterfall model, but the point of difference is with every phase we are involving testing. So यहाँ पर different क्या होता है, वो ये होता है that testing is involved along with every stage. हर एक स्टेज के साथ टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है. टेस्टिंग, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हर एक स्टेज के साथ हर एक स्टेज के साथ हमारी जो है टेस्टिंग लग रही है. जैसे आपने रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करा, फिर उसके बाद सिस्टम को डिज़ाइन करा, फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करा, मॉड्यूल्स डिज़ाइन करे, है ना. तो हर एक चीज़ की डिज़ाइनिंग जो है, डिज़ाइनिंग के साथ आप बेसिकली टेस्टिंग भी कर रहे हो. दैट्स व्हाई इट्स अ वी शेप मॉडल, बिकॉज वी हैव टेस्टिंग इन्वॉल्व विद एवरी स्टेज. लेट मी शो यू हियर. Yes, so this is based on association of testing phase. That's what I said. Along with every development model in the V model. हर एक मॉडल के साथ एक साइड पे आपके पास वेरिफिकेशन फेज होगा, validation phase will be on the other side. That is, both the activities run simultaneously and both of them are connected to each other in a V shape through coding phase, which is called as V model. So ये कैसा दिखता है मैं दिखाती हूँ. टेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ हर फेज के ऊपर टेस्टिंग एक्टिविटीज है. यू कैन सी दिस. जैसे रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना है तो यहाँ पर टेस्टिंग लगती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ठीक है. सिस्टम टेस्ट करना है तो यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग. आर्किटेक्चर टेस्ट करना है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, राइट. मॉड्यूल टेस्ट करना है तो यूनिट टेस्टिंग, एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कोडिंग. So this is how they basically work. And you can also understand this way कि जब हम बात करते हैं कि मॉड्यूल को टेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने मॉड्यूल टेस्ट बोला ना, सो यू कैन टॉक अबाउट लाइक आई एम टेस्टिंग माय बिल्डिंग. सो मॉड्यूल टेस्टिंग इज बेसिकली एग्जांपल टेस्टिंग ऑफ अ रूम. एक कमरे के डिजाइन को आप टेस्ट कर रहे हो, है ना, डिजाइन बना रहे हो. आर्किटेक्चर इज द डिजाइन ऑफ अ फ्लोर, पूरे फ्लोर का, है ना. यहाँ पे पूरे फ्लोर की आप बात कर रहे हो, उससे लार्जर लेवल है. सिस्टम डिजाइन इज टेस्टिंग ऑफ द कंप्लीट बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द कंप्लीट बिल्डिंग. सो यहाँ पर हम फ्लोर की बात कर रहे हैं. एट एवरी स्टेप वी हैव टेस्टिंग विच इज इन्वॉल्व्ड. ओके, सो आप पहले रूम से शुरू हुए, रूम, फ्लोर, उसके बाद आपके पास है बिल्डिंग, राइट. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट मॉडल which is called as the iterative model. Let me see. Yes, oh sorry, incremental. Iterative तो हम पढ़ चुके हैं. So incremental model, here the software development process is divided into several increments where the same phase are followed in each increment. हर एक increment में same phase चल रही है. Simple language में आप कह सकते हो that a complex project is developed in many modules or builds. Very simple example I can give you. Let us consider I have to develop a very complex project, है ना. So मैंने क्या करा, I have developed a portion of it. जैसे मैंने सबसे पहले A पार्ट बनाया, ठीक है. अब मुझे इस A पार्ट के अंदर B पार्ट को जोड़ना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पार्ट बाय पार्ट वर्क कर रही हूँ, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल. यू कैन यूज द वर्ड मॉड्यूल बाय मॉड्यूल. ओके, सो you have constructed one module. To this module you are going to add another module which is B, right. Now I have to add another module to this. So to this module B I'm going to add another module which is C. So this way you keep on adding and you work module by module. So now the development is done module by module. Important word है यहाँ पर, module by module. Development, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. सो पूरा एक साथ नहीं बन सकता. क्योंकि एक साथ नहीं बन सकता तो हमें टुकड़ों में बनाना पड़ेगा. ये पहला टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, ऐसे कर करके आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे. सो इट इज मॉड्यूल बाय मॉड्यूल.
So you can see that each subsequent, और एक बेसिक एग्जांपल दूं, लेट्स से आपने फॉर्म बनाना है, ठीक है, अब मुझे एक फॉर्म का प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पूरा फॉर्म एक साथ नहीं बन सकता, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले बेसिक चीजें दे दी फॉर्म के अंदर कि फॉर्म में बंदे का नाम होगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, दैट्स इट, दो चीजें मैंने। इसके बाद अब मुझे इसके अंदर सेकंड स्टेप ऐड करना है कि मुझे नाम और फोन नंबर के अलावा मुझे उसका एड्रेस भी देना है और ईमेल आईडी भी देनी है। तो सेकंड स्टेप पे मैंने नेम एंड फोन नंबर में एड्रेस एंड ईमेल आईडी प्लस कर दिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे पहुंचे, थर्ड स्टेप में नेम एड्रेस ईमेल आईडी के अलावा मुझे उसका आधार नंबर भी देना है, पैन नंबर भी देना है, तो वो मैंने लेटर ऐड करा, समझे। सो आई एम क्रिएटिंग द मॉड्यूल्स, राइट। सो हियर we are collecting the customer's requirement. Instead of making the entire software at once, we take some requirements, जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पर I have just added, like example मैंने अभी दिया ना आपको कि let's say मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे मैंने सिर्फ बंदे का नेम एंड फोन नंबर लिया, ठीक है, इतना बनाया। इसके अंदर नेम फोन नंबर तो मेरे पास था ही, इसमें मैंने सेकंड स्टेप में बंदे का ईमेल आईडी और दूसरा मैंने उसका एड्रेस, ये दो फीचर्स और ऐड कर दिए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में मैंने क्या करा, थर्ड स्टेप में मेरे पास ये दोनों तो थे, मैंने उसका आधार नंबर, उसका वोटर आईडी या फिर पैन नंबर, कुछ और चीजों को ऐड करा। फिर लेटर मैंने उसका सिग्नेचर, फोटोग्राफ, है ना, थंब इम्प्रेशन। सो दिस वे, सो दिस इज द एंटायर सॉफ्टवेयर इज नॉट डेवलप्ड एट वन, वी टेक सम रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन देम वी क्रिएट अ मॉड्यूल और द फंक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड डिलीवर इट टू कस्टमर। ये कस्टमर को दे दिया कि चलो भाई बेसिक चीजें तो डालो, है ना। इसके बाद हमने क्या करा, कुछ और रिक्वायरमेंट्स ली, जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल एंड एड्रेस लिया, फिर मैंने उसको ऐड करा और उसके बाद ये दूसरा मॉड्यूल बन गया सॉफ्टवेयर का, फिर मैंने उसको कस्टमर को दे दिया कि चलो भाई तुम यूज कर सकते हो, है ना। सो दिस वे each subsequent release of the software add functions to the previous release. What is the difference here in case of iterative and incremental? Incremental में आप उसी के अंदर चेंज कर रहे हो, आइटरेटिव में आप नया वर्जन निकाल रहे थे, समझे। सो दैट्स व्हाट इज द डिफरेंस हियर, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द सॉफ्टवेयर final product is produced and released in the market. This is how you basically produce. These are the various builds we have in case of the incremental model. Confirmation needed, everyone clear? जल्दी से, सिंपल है, चीजें बहुत सिंपल हैं, इट्स जस्ट आपको कुछ कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द RAD मॉडल। RAD stands for Rapid Application. This full form has been asked in UGC NET examination. Otherwise can come in state level also. ये question पूछा हुआ है। Rapid Application का मतलब होता है rapidly बनाना, बहुत तेजी से हमें जब बनाना होता है ना, जब हमारे पास सबसे important है कि हमारे पास टाइम और कॉस्ट दोनों का कॉन्स्ट्रेंट हो, है ना, तब आपके पास RAD मॉडल आता है। सो दिस हैज वेरी मेजर फीचर दैट वी हैव टाइम एंड कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट। टाइम भी जल्दी, ऑब्वियसली टाइम जल्दी तो पैसा तो डेफिनेटली वहां पे कम लगने वाला है ना, और इससे भी ज्यादा यूजर इंटरेक्शन हर लेवल के ऊपर है, बिकॉज क्योंकि जल्दी बनाना है तो यूजर से पूछना तो पड़ेगा, है ना, यूजर से पूछना तो पड़ेगा कि भाई क्या चाहिए, ये ना हो ना कि बाद में यूजर कहे कि मुझे तो ये चाहिए नहीं था। दैट्स व्हाई यूजर इंटरेक्शन मैक्सिमम, यूजर इंटरेक्शन इज मैक्सिमम, राइट, एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे यूजर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। एंड रैपिड एप्लीकेशन भी ऐसे ही होता है। इसको जल्दी बनाने का एक तरीका और है, और रादर यही एक्चुअल तरीका है
कि जो पूरा टास्क है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड टू डिफरेंट टीम्स. Let us consider I want to make a project. So what am I saying is, rather than giving a complete project to one person, I'm saying one portion will be developed by Arindam, second portion will be developed by Diksha, third portion will be developed by Vandita, fourth portion will be developed by Pallava Rai. समझे? तो मैंने क्या करा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक बच्चे को देने की बजाय मैंने उसको बांट दिया, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर जल्दी चाहिए, है ना. मैंने सबको अलग अलग दे दिया, मैंने कहा तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, ठीक है, और लास्ट में सबके डेटा को मिला लेंगे, फाइनल सॉफ्टवेयर बन जाएगा. दैट इज बेसिकली रैपिड एप्लीकेशन, राइट. सो यहां पर यस वी हैव द फीचर ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑल्सो. आई थिंक यू हैव अटेंडेड माई क्रैश कोर्स अरिंदम. आई हैव यूज्ड दैट वर्ड देयर. चलिए, so project is divided, large project is divided into smaller projects, and what we're going to do here is these small projects are basically distributed to the various people who can work simultaneously, है ना. As I said you that one person is working on one part of the software, other person working on other part of software. So this way everyone would be working at the same time. Yes, you can say टीम वर्क कह सकते हो, है ना. डिवाइडिंग इनटू स्मॉल प्रोजेक्ट्स, स्मॉल प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड वन बाय वन, कंप्लीटेड ऑन टाइम्स, है ना. एंड लार्ज प्रोजेक्ट विल गेट रेडी क्विकली, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा ऐसे. यस, मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कोड को रीयूज करना, कंपोनेंट्स, टूल्स, प्रोसेसेस सबको रीयूज करने का यहां पर इसका एडवांटेज है. सो ये लेट्स से मॉड्यूल 1 टीम नंबर 1 ने बनाया, ठीक है. मॉड्यूल 2 दूसरी टीम बना रही है, टीम 2. मॉड्यूल 3 तीसरी टीम बना रही है, टीम 3. तो लास्ट में जो सबने बनाया उसको मर्ज करेंगे, है ना. एंड डेफिनेटली आपके पास फाइनल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. दिस इज हाउ बेसिकली द थिंग्स आर वर्किंग. ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव ऑन करेंगे. अच्छा, अटेंड किया था तभी, बढ़िया है. ओके बच्चे, 2 इंपॉर्टेंट मॉडल्स रह गए, एक स्पाइरल और एक अजाइल. चलो स्पाइरल मॉडल पे मूव ऑन करते हैं. So spiral model basically is a model which includes one extra thing apart from the iterative model and waterfall model, and that is the risk involvement, है ना. So we have an essential feature which is existing in the spiral model, that is risk, जो अभी तक हमने नहीं देखा था. रिस्क हैंडलिंग इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर हम लोग रिस्क वाले फीचर को ऐड ऑन करते हैं जो अभी तक किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आया था. सो वी हैव वन कीवर्ड विच यू फॉर श्योर हैव टू रिमेंबर इन दिस, एंड दैट इज रिस्क हैंडलिंग. यस, हैंडल द रिस्क. That's the prime feature existing for the spiral model, right? It is definitely not for the small project. ये बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है, बिकॉज बड़े प्रोजेक्ट्स में जितना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बड़ा होगा, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जितनी बड़ी है उतना बड़ा रिस्क होगा, है ना. सो दिस इज बेसिकली फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स. When we have very large projects, in such cases we have the spiral model involvement. So this is which is for the projects large and complex. Clearly लिखा हुआ है मैंने. It looks spiral because it has a curve type of picture. That's why we call it as spiral. It's a loop type of structure होता है इसका, है ना. Number of loops decide नहीं होते. ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कितने लूप्स होते हैं, तो इट्स नॉट डिसाइडेड, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डेफिनेटली द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है. Here the project goes through the various loops से जाएगा again and again, again and again, है ना. ऐसे iterations, इसीलिए इसको iterative model भी बोल रहे हैं, because जब तक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होगा तब तक it has the spirals through which it is going on, right? And the most important feature is
कॉल्ड एज द रिस्क हैंडलिंग. बहुत इंपॉर्टेंट फीचर एंड एसेंशियल. So the most essential special thing is that risk are identified in each phase. ये है सबसे प्राइम पॉइंट इसका, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सॉफ्टवेयर मॉडल के अंदर रिस्क के ऊपर बात होती है, तो वो आपका स्पाइरल मॉडल है विदाउट एनी डाउट. ओके. Iterative as well as waterfall. बिल्कुल correct. And this is a structure also I've added, you can see. So we are identifying and resolving the risk every time it goes on to the spiral with the process of development, and we have identifying and resolving the risks as well, है ना. अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप भी ऐड करा है, बट मैं पहले आपको ना अजाइल बताऊंगी, उसके बाद प्रोटोटाइप पे आएंगे, बिकॉज अजाइल प्रोसेस मॉडल वो है जो आज की दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग मॉडल है. सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आज की डेट में अजाइल है ना. अजाइल क्यों ऐसा मॉडल है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है? बिकॉज दिस इज the latest model which is used in all major companies. This is the latest model, बिल्कुल latest, which is used in all major companies. जैसे कि एग्जाम्पल Amazon, Flipkart, यस, एटसेट्रा एटसेट्रा. जितनी भी आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब लोग जो हैं अजाइल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं. दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फीचर्स, iterative as well as incremental. So the focus is basically the adaptability and customer satisfaction. ये दो फीचर्स हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. अजाइल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बताऊं? हाँ, यस, एब्सोल्युटली अरिंदम. दिस मीन्स मूव क्विकली. अजाइल का मतलब है जल्दी बनाना. जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था द चाइनीज प्रोडक्ट्स, है ना. I'm giving you again this example. All the Chinese products, they are basically moving quickly, है ना. ये क्विकली मूव करते हैं. सो वो क्विकली क्यों? बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ऑन मेंटेनेंस फेज. ये जो है मेंटेनेंस पे काम नहीं करते, ये अगली चीज को बना देते हैं, है ना. सो मूव क्विकली. यहां पर एज आई सेड फ्रीक्वेंट डिलीवरी है. changes, they are basically, you can say every week they are communicating with the customer. They are introducing new things again and again. So ये इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. आज की पूरी दुनिया अजाइल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना चाहती है, बिकॉज यहाँ पर रैपिड डिलीवरी हो रही है ना. जैसे चाइनीज प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल दिया, या हर मतलब थोड़े टाइम के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड ऑन हो रहे हैं. सो इट रियली हैज एडवांटेजेस ऑफ क्विक डिलीवरी. यस, क्विक डिलीवरी. रैपिड भी आप वर्ड यूज कर सकते हो. इट हैज रैपिड डिलीवरी, राइट. ऑल्सो दिस हैज फेस टू फेस कम्युनिकेशन, है ना. तो क्या कर रहे हैं, यूजर से फीडबैक लेते हैं. आप एक बात देखो, कोई आपने प्रोडक्ट लिया ऑनलाइन, लेट अस कंसिडर आई हैव परचेज दिस रूम फ्रेशनर. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई हैव परचेज दिस पोर होम रूम फ्रेशनर. ठीक है. सो अब ये रूम फ्रेशनर जब मैंने परचेज किया, देयर इज अ पोर्टल दैट आई हैव टू प्लेस फीडबैक टू द प्रोडक्ट व्हिच आई हैव परचेज्ड. So what is the purpose of the feedback? Because they're interacting with the customer directly, taking the feedback and producing next product. That's it. ये है टारगेट, है ना. सो यहाँ पे क्या है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है यूजर के साथ. आप ऐसे बोल सकते हो, यूजर के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन है. मतलब यूजर अपना रिव्यू दे सकता है, वीडियो डाल सकता है, फोटो खींच के डाल सकता है. तो वो रिव्यू है जो कि उसको नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाने में काम कर रहा है. रेस. तो यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन नहीं है. सबसे बड़ा प्रोसेस है इसके अंदर कि टाइम के ऊपर हम बात नहीं करते. टाइमलेस है बिल्कुल यहां पर.
ठीक, लेस टाइम रैपिड तो मैंने वैसे ही बोल ही दिया है. तो another thing, and also one more thing, frequent changes, है ना, एकदम से चीजों को बदल सकते हैं यहाँ पर. At the same time we do have certain disadvantage also for agile, that there is no maintenance, है ना. जैसे मैंने बोला चीज खराब होगी ना तो जनरली रिपेयर नहीं होती, फेंक देते हैं, नहीं आती है ना, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस वर्क नहीं है. Yes, there is no maintenance. That's what is the major problem here, disadvantage का, कि मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं. ऑल्सो चीजों को लिखा नहीं जाता बिकॉज उसमें टाइम लगता है ना, और टाइम तो हम लोग वेस्ट ही नहीं कर रहे. सो चीजों को लिखते नहीं है, आगे मूव ऑन कर लेते हैं. नो डॉक्यूमेंटेशन. ऑल्सो एवरी पर्सन वर्किंग parallelly at same level, that's why also it has rapid delivery ना. हर एक बंदा सेम लेवल पर काम कर रहा है, ये नहीं कि कोई सीनियर है कोई जूनियर है, तो सब रैपिडली काम करने में लगे हैं. that's why भी ये बहुत ज्यादा क्विक होते हैं अजाइल डेवलपमेंट, एंड that's what is a फंडा ऑफ अजाइल. यही मेजर अजाइल का प्रोसेस है. so I've added some of the important words. Agile methods, Crystal Agile methods. This is the beneficial for projects with a high degree of uncertainty. जहां पे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा बदलती हैं वहां पर हम क्रिस्टल अजाइल मेथड्स को यूज करते हैं. ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करा है. यू हैव टू आई थिंक यू शुड रीड, बिकॉज यहाँ पे वर्ड्स अच्छे से, स्क्रम के ऊपर क्वेश्चन था, है ना, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. सो ये इस वजह से मैंने ये वर्ड्स यहाँ पे ऐड करे हैं. We have dynamic system development method उन projects के लिए होता है which has moderate to high uncertainty, where requirements are prone to change frequently. Its clear-cut role and responsibility focus basically on delivering the working software in short time frames, right? So वहां पर हम लोग dynamic system development methods को use करते हैं. We can also use agile method, feature-driven development. Feature-driven development क्या होता है? It is implemented by utilizing a series of techniques जैसे कि creating feature list, conducting the models evaluation, also implementing a design by feature method to meet its goal. कि हम feature कौन सा add करें कि मेरा target reach हो जाए, जो मेरा goal है वो मिल जाए, है ना. So this methodology is effective in ensuring that end product is delivered on time and that it aligns with the requirement of the customer. कस्टमर की जरूरतें भी यहाँ पर पूरी हो जाएं. तो दोनों चीजों को ध्यान में रख के ये जो है मेथड डेवलप होता है. फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट हम तब यूज करते हैं. स्क्रम क्या होता है? स्क्रम इज फॉर टैकलिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स and also ensuring their successful completion. Successful complete भी होना चाहिए. स्क्रम को लीड कौन करता है? स्क्रम का एक मास्टर होता है who basically oversee the process, and the product owner who establish the priorities. So दो important terms है, एक scrum owner है, scrum master सॉरी, जिसका काम है कि प्रोसेस को पूरे समझना, ठीक है, एंड प्रोडक्ट का ओनर जो कि प्रायोरिटीज को एस्टैब्लिश करेगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्या लेस इंपॉर्टेंट. ठीक. Also we have extreme programming जो कि applied होती है for the projects that have high level of uncertainty and require frequent changes, as it allow for quick adaptation to new requirements and feedback. Extreme programming जैसे मैंने अभी बोला था, ये बेस्ट एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आ सकता है चाइनीज प्रोडक्ट का, कि एकदम फीडबैक मिला, ये नहीं ये कर दो, है ना, तो हम चीजों को फटाफट से बदल रहे हैं, न्यू रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना रहे हैं. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. सो दीज आर सम ऑफ द एसेंशियल वर्ड्स जो कि रिलेटेड टू अजाइल है, इस वजह से मैंने ऐड करा. स्क्रम अजाइल के अंदर आता है, ठीक है, वो उसका एक मॉडल है. स्क्रम में एक अजाइल का मॉडल है. 5 मॉडल्स मैंने बताए हैं जो कि असेंशियल हैं स्क्रम के, राइट. क्रिस्टल, डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, स्क्रम, एंड ऑल्सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. One more definition I've added here, rather 2 definitions I've added here. प्रोटोटाइप पे मैं अभी आती हूँ, पहले मैं ये 2 definitions बताऊं, उसके बाद चलो वेब इंजीनियरिंग क्या होता है और वेब इंजीनियरिंग का क्या प्रोसेस है ये समझ लेते हैं. दिस इज लास्ट टॉपिक. ओके,
वेब इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन है जहां पर हम सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड, क्वांटिफाइबल अप्रोच लेते हैं जिससे हम डेवलप कर सकते हैं किसको, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। तो अब आप बना क्या रहे हो, आप एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हो, बट कौन सी एप्लीकेशंस, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है, राइट। जब आप पर्टिकुलरली देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, है ना। Particularly when you are developing any software which is web based, then we use the word web engineering, ठीक है। So web engineering means basically the development of web based application. So इसकी आप लोग development करोगे, operation देखोगे, maintenance देखोगे, किसका, किसी web based application का। Understood the point of difference? क्लियर है, ठीक है। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, लाइक सेम चीजें हैं, इट्स जस्ट कि हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एंड अगेन जब हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग प्रोसेस की, सो वो हमेशा वही सारी चीजों के ऊपर बात करेगा, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, एनालिसिस, डिजाइन। सो वो सारी चीजें सेम है, सिर्फ इतना सा वर्ड का फर्क है कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, है ना। वेब इंजीनियरिंग में आप अगेन सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, बट वो सॉफ्टवेयर किसका है, वेब बेस्ड है। ओके, दैट्स व्हाट इज अ डिफरेंस हियर। चलिए लास्ट वर्ड पे मुझे आना था, उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी बिफोर वाइंडिंग। सो प्रोटोटाइप मॉडल एक लास्ट मेरा कॉन्सेप्ट रह गया था। प्रोटोटाइप का मतलब होता है डमी, किसी चीज का छोटा वर्जन बनाना, है ना। एग्जाम्पल लगाओ, गाड़ी बनानी है, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कार इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट, so why would we invest such a huge cost? Rather what we can do is we can create a dummy model for it, which is with the help of a software, है ना। So that software can be used for the development of actual product, but that we can do because the smaller version is going to take less money, है ना। सो उसमें पैसे कम लगने वाले हैं, इस वजह से आप उसका एक स्मॉलर वर्जन बनाते हो। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, दिस इज फर्स्ट अ प्रोटोटाइप इज क्रिएटेड एंड देन फाइनल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड ऑन दैट प्रोटोटाइप, राइट। जैसे आपने देखा कई बार कोई बड़ी लेट्स से बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ी कोई गवर्नमेंट जो है बिल्डिंग बन रही है, तो वो क्या करते हैं, उसके बाहर पहले, या कोई मॉन्यूमेंट बन रहा है तो उसके बाहर क्या करेंगे कि वो उसका एक डमी मॉडल बना देते हैं, है ना, जिसका मतलब कि ये ऐसा दिखेगा, समझे। या फिर कोई अपार्टमेंट्स बन रहे हैं तो उसके बाहर वो उसका एक छोटा सा डमी मॉडल बना के लगा देते हैं, दैट इज ए प्रोटोटाइप, राइट। ओके, सो एंड यूजर्स, वन प्रॉब्लम विद दिस इज इफ एंड यूजर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर प्रोटोटाइप से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो प्रोटोटाइप भी बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहां पर लगता है पैसा और समय। भाई मुझे लग रहा है कि ये डमी सही नहीं बनी, मुझे पसंद नहीं आया, है ना। अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं कहूंगी दोबारा बनाओ, पर वो जो जिसने बनाया उसने टाइम लगाया, है ना, उसने पैसा लगाया, तो वो दोनों चीजें वेस्ट होगी। दैट इज द मेजर ड्रॉबैक। एंड इसका अगर हम कीवर्ड देखें प्रोटोटाइप मॉडल का, सो दिस इज डन बेसिकली इन द केस व्हेन यूजर रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर। यूजर को पता नहीं है ना कि मुझे क्या चाहिए, यूजर को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए, तो हमने कहा चलो भाई प्रोटोटाइप बना देते हैं, शायद तुम्हें समझ आ जाए, right? So this is user requirements are not clear. You can say lack of definitely requirement knowledge or something, huh? But it has high involvement of user, because user will then get satisfied with the prototype and will confirm that okay, create the final product based on it, है ना। So high involvement, one second, high involvement of user। चलिए, I think done. Yes, please. Clear everyone?
एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट, बिकॉज वी डू हैव टू सी ना कि वो रिक्वायरमेंट में नहीं था या फिर यूज नहीं हुआ, और एनी ऑफ द रीजन। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। Yes, so this was the question asked in this paper, ReNet examination, PYQ August 2024. ठीक है, क्वेश्चन है, which of the following are agile process models? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, XP. Second option is given waterfall. Third is given Scrum. Fourth is given spiral. And fifth is incremental. Right? You have to choose the correct options. First is, okay, or let's take A is 1 and 3. B is 2 and 3. C is 1 and 4. And D is 2 and 5. Time starts now. We have 5 options. No, there are 4 options definitely. And timer for 45 seconds. Time starts now. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बट आप देखो कि अभी हमने डिस्कस करा, इसीलिए मैं अभी के अभी आपको इसको रिवाइज करवा रही हूँ। रिस्क के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Yes, okay, time up here. So we have studied. Let me take you back. Let me take you back what we have studied. Just a second. Okay. So we have studied these words ना, अभी agile process में अभी मैंने आपके साथ ये words डिस्कस करे हैं, और मैंने बोला भी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अजाइल मेथड्स, क्रिस्टल अजाइल मेथड, डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट ये नहीं दिया है ना, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट ये भी नहीं दिया, ये दिया है क्वेश्चन में स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, सो ये दोनों वर्ड्स हैं आपके, अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं बिल्कुल। So you will choose here, definitely we have extreme programming and also the Scrum. 1 and 3. Option number A is the right answer for this question.
Correct? 88% audience is right here. चलिए, clear everyone? Clear? This is all about the discussion today. So I hope you now understood the difference between various types of models. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स में सबको अब फर्क पता लग गया होगा, ठीक है। और मैंने जैसे बोला आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका पूरा कीवर्ड्स के ऊपर है, बिकॉज 80% थ्योरी है और जो 20% न्यूमेरिकल्स है उसमें भी फॉर्मूला बेस्ड है, राइट। अपना लॉजिक कुछ नहीं है, सो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। क्लियर है? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन टुडे एवरीवन। फॉर होमवर्क डू प्रैक्टिस द डीपीपी, ठीक है, डीपीपी प्रैक्टिस करना। एंड व्हाट वी हैव स्टडीड इन टुडेज मॉडल सेशन, वी हैव स्टडीड all the models, SDLC models, right? All keywords and important points. So this we have covered in today's session. See you in the next lecture tomorrow. Do not forget, tomorrow is the YT session also. Thank you so much. Good. डीपीपीस खुशबू आफ्टर सेशन होता है ना, जैसे अभी ये टॉपिक मैंने करवाया तो इसका डीपीपी आपको मिलेगा, तो वो लेक्चर बाय लेक्चर होगा, ठीक है। अच्छा, सो एवरीवन यू नो दैट माय वाईटी क्लास टुमारो, so MWF we have YouTube session 11 AM. Do not forget, you have to join, because as I said कि यहाँ पर बिल्कुल different approach से चलती हूँ YT पे, so as to make interest of students. So this is equally important to join for the session. Tomorrow I have YouTube class because tomorrow is Friday. So I'll be meeting you at 11 AM also, before our regular paid batch, right? Chaliye, see you all. Thank you so much. God bless you. Bye.